Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। वो एक लाइट तो जरा सी रोशनी के लिए तो चाहिए होगी ना। हाँ चले स्टार्ट करें भाई। चले भाई चलो। Assalamualaikum everyone. My name is Seher and my program department is BS Psychology. These are my group members Alishba, Mahin and Hania. Today our topic is the government in the Constitution of Pakistan. First of all, I would like to फाइल बंद कर दें सब और वहाँ आगे तवज्जो कर देखें। First of all, I would like to share the governmental structure of Pakistan. Let's talk about the executive government first. Here comes the Prime Minister. A Prime Minister is the head of the government who is elected by the National Assembly for 5 years. A person should be Muslim and 35 years old to be the Prime Minister of Pakistan. And the Prime Minister advises the President and he also forms the Federal Cabinet. The next thing is Federal Cabinet. Federal Cabinet is a senior government which is led by the Prime Minister. And this Federal Cabinet consists of 49 ministers and advisors. And these advisors and ministers are appointed by the Prime Minister. The next government is the Parliament. The Parliament is legislative government. The Parliament consists of the National Assembly and the Senate that can initiate and pass legislation. Let's talk about the President first. A President is a person who is the head of the state. He acts on the advice of Prime Minister and the President is elected by the electoral committee for 5 years. The electoral committee includes the National Assembly, the Provincial Assemblies and the Senate. National Assembly is also called a federal parliament. National Assembly can approve the budget, finance budget and also pass the finance bill. It is the lower house of the parliament. It is resolved by the president. The president resolves the National Assembly. National Assembly consists of 342 seats, in which 272 seats are for the directly elected people and the remaining 70 are for the women and the religious minorities. The members of National Assembly are also known as MNA, members of National Assembly. The division of the seats depends upon the population of the provinces. And the total duration of National Assembly is 5 years. Now I would like to call Mahin. She will explain us the provincial assemblies and Senate. Assalamualaikum. I am here to explain provincial assemblies. Provincial assemblies are basically provincial level of legislative level. Okay. So there we have 4 provincial assemblies situated in every province. There are 5 kinds of. Their time duration is almost 5 years, and it's very important that every member of this should be participant of this province. यानी कि वो उसी सूबे का रिहायशी होगा तो ही जो है वो उसमें मेंबर बन सकते हैं, अदरवाइज वो मेंबरशिप नहीं कर सकता। ठीक है, देयर वी हैव सेनेट। ठीक है, इट इज द अपर पावर ऑफ द पार्लियामेंट in which upper house of parliament this consists of 104 members. इसके 104 members होते हैं और जिनको elected किया, जिनको हम जो select किए जाते हैं वो assemblies के through select किए जाते हैं basically. And each province का equivalent seat, सब provinces की seats equivalent होती हैं, but the duration जो है वो senate का 6 years होता है, जबकि हमारे पास जो provincial assemblies होते हैं उनका 5 years का duration होता है. And there we go next. The judiciary is responsible to understand and enforce laws. Following are the section of judiciary.
हमारे पास यहाँ पे जो ज्यूडिशरी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज को इन्फोर्स करवाने के लिए बेसिकली। तो उसमें हमारे पास 5 कैटेगरीज आ जाती हैं, उसकी 5 टाइप्स हैं जो कि हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द लास्ट वन इज लोअर कोर्ट। एंड आई वुड लाइक टू कॉल हानी टू कंप्लीट दिस। जो हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, विच वॉज इम्पोज्ड ऑन 23 मार्च 1956, और ये कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड टिल 1956 till 7 अक्टूबर 1958 तक ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इट वॉज अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था और डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन बताए गए थे। इसमें कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन नहीं था और सबसे ज्यादा जो पावर थी वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। और जो है देयर वाज नो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था। 1 जून को ये इम्प्लीमेंट किया गया था फिर 1962 25 मार्च। ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जो है 2 इस्लामिक इंस्टीट्यूशन थे जो कि इंट्रोड्यूस कराए गए थे। एक था एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और दूसरा था इस्लामिक रिसर्च। इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इस कॉन्स्टिट्यूशन में दे इंश्योर्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान और जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स वर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। Constitution. So the National Assembly passed 1973 Constitution on 10 April 1973. 1973 Constitution of written Constitution. Constitution of Pakistan 1973 is a written constitution and it comprises of 280 articles. State relation. The Constitution of Pakistan 1973 announces that Islam is a state religion. Parliamentary form of government. Parliamentary form of government has been provided for the government in this Constitution. National language and official language. Urdu has been declared as the national language of Pakistan, but the official language is English. Federal form of government. Constitution of Pakistan 1973 provides federal form of government consisting of 4 provinces of the central government of Pakistan. Direct elections. Constitution of Pakistan 1973 has provided method of direct elections to elect members of National Assembly and Provincial Assembly. Rights of minorities. Rights of minorities have been protected in 1973 Constitution. And nutshell, to conclude that the 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan is a democratic state, parliamentary with bicameral legislature in its nature. It is the constitution of elected people, and all major political parties of Pakistan unanimously accepted it. Minorities are also have safeguard and fundamental rights in such constitutions. Thank you. जज़ाकल्लाह भाई, माशाल्लाह बहुत बेहतर कोशिश करी। आपका नाम क्या है? सहर ने तो मेरा थोड़ा सा बेहतर तरीके से स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा इन दोनों ने ना बहुत तेज कर दिया, जैसे कोई पीछे लगा हुआ है। इतना ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है। और असल मकसद ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, जो आपका टॉपिक है, वो भी जरा सा नुमाया हो, पता चले, अंदाजा हो कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सारे तौर पे किसी 2-3 नया पूछूंगा तो ये लोग शायद टॉपिक बता सकेंगे कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने टॉपिक को भी नुमाया करें, बातें करें, बताएं क्या टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप कौन है? ग्रुप नंबर 2।
ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 2 सर हम आ गए सर। ग्रुप नंबर 2 किसका है? ऐसे अपनी मर्जी से नहीं आना। ग्रुप नंबर 2 किसका है? सर ग्रुप किस नाम से इवेंट किया था? देखिए कहाँ है ग्रुप उससे ले सर मैं ऐसे वो कर रहे हो या तो ग्रुप 2 क्या बात है, कौन सा ग्रुप है? नजाफत रखी क्या चलिए फिर यार मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ओपनिंग करता हूँ या एंडिंग करता हूँ। कम होता है। आज टाइम में दिया हुआ है ना। तस्वीर मानी नहीं। ये लो आ जाओ। बस सही है। चले भाई चलो फिर बोलने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है। धीमे धीमे हमारी ग्रुप मेंबर एक्शन होंगी तभी उनको एस्केप कर ले बस। ग्रुप 1 जो है अपने नाम लिख के देते ग्रुप 1 जो एब्सेंट है उसके नाम एंड में लिख के दे। नंबर कटेंगे। 15 नंबर मिलेंगे ही नहीं, कटेंगे क्या? हाँ जी स्टार्ट करें। बटन दबा दिया। Assalamualaikum, my name is Fatima and my group members are Krishna and Ruta. And the topic that we will be discussing about are government and its types. So what is government? A government is a system to govern a state or a community. And there are 6 types of government: democracy, oligarchy, monarchy, totalitarian, and authoritative. And the government that I will be discussing about is democracy. So democracy is a parliamentary system where people have the right to choose their leader to govern a country or a state. And the examples are United States of America, Pakistan, or India. And I would like to call Krishna for the rest. Assalamualaikum, my name is Sayyida Krishna and I will be discussing the further types of government. My topic is monarchy. We all have heard about monarchy and we have studied about it, but I'll go on further details that monarchy means that the power is not resided on one individual, on a supreme individual. All the authority has been in one individual. As an example is Queen Elizabeth. We have seen that. As I go further, we will go on types of monarchy. It explains that all the power that has been given to the Queen or the power or the one individual that is ruling it, it has been divided.
The power is on political parties and on the individual as well. They have to share the power. One cannot take the complete control, and one cannot subtract another person. If there has been a law which has been given, so both parties have to agree on it. My further type is oligarchy. Oligarchy is a system of tribes in which power is divided in not in one person but in a complete group. We have seen in tribal areas such as Sindh and that parties. There are further groups that rule a certain area, like in villages. Like, how can I give you an example? I can give you an example of feudal system. Like in villages, there is only one leader who has the complete control, and people sit around in an area and they share their problems with him and have to give a decision. That is what oligarchy is. For further, Rida will explain. अस्सलाम, मैं हूं सिला बतूल और मेरा टॉपिक है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ डिक्टेटरशिप इन व्हिच द मिलिट्री एक्सपर्ट कंप्लीट, मतलब एक जो मिलिट्री का हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है वो पूरे मुल्क पे अपनी हुकूमत चलाता है। जब उसे लगता है कि जो दूसरी हमारे डेमोक्रेसी वाले हैं वो सही से नहीं चला रहे तो अपना लाता है, और सबसे खतरनाक चीज़ यही हो गई है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पाकिस्तान में हो चुका है जनरल यहिया और परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक और एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, और नॉर्थ कोरिया मशहूर है इसमें काफी माला का बस हो गया कंप्लीट। जी सर, कोई एक मेंबर नहीं है। इसमें से कोई काटेगा थोड़ी। ये है कि असल में जो है ना, असल मकसद हमारा यही होता है प्रेजेंटेशन में, टीचर को जो है स्टूडेंट से कोई ज्यादा मवाद नहीं चाहिए उस पर सुने। सही बात है। असल मकसद वो उसको ये देखना होता है कि यहाँ पर आकर जो है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस जिसको आप लेते हैं, या उर्दू के अंदर उसको कहा जाए कि आपको अपनी जात पे कितना ज्यादा यकीन है, आप कितना ज्यादा अच्छे अंदाज में सामने बात कर सकते हैं दूसरे के। और ये असल चीज होती है। आपको भले कुछ भी नहीं आता हो ना, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बात भरे हुए हैं, आपके अंदर एहसास है, आपके अंदर जो है वो काबिलियत है, तो फिर आपके लिए किसी के सामने भी बात करना कोई मुश्किल नहीं। सही बात। अभी मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चले जिक्र कर देता हूँ, जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारे माशाल्लाह देखिए एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनके मुतालिक दूसरे बाहर के लोगों का ये गुमान होता है, एक अंदाजा होता है कि शायद ये बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है ऐसे होते हो, लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं है। लेकिन बाहर वालों का आपके मुताबिक एक अलग जहन है, मकसद उनका जहन बहुत सी चीजों में गलत भी है और चंद चीजों में सही भी है, लेकिन अक्सर चीजों के मुताबिक उनका जहन आपके लिए बहुत ज्यादा गलत होता है। वो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मैं जहाँ अभी भी आया हूँ ना, तो ये पाकिस्तान का आपको पता है सेंसस स्टार्ट हो रहा है, मरदमशुमारी जो है वो शुरू हो रही है, और उसी की ट्रेनिंग में हम फंसे हुए थे। यानी कि उसकी ट्रेनिंग जो है वो सारी कंडक्ट की भी हमने, उन सारे चक्करों में सुबह से रात दिन एक ही हो रहा है। और वहाँ भी जो कैंडिडेट्स इस वक्त टोटल आए हुए थे वो हालांकि मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन उसमें 17, 18, 19, 20 ग्रेड के भी लेक्चरर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल और हेड मास्टर और फलाना ढिमकाना, ये सब वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं।
यानी कि हमसे कई स्केल वाइज ऊपर जो है ना वो लोग आकर वहां पे हमारे मातहत होकर हमसे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अब उनसे बात करते हुए जैसे अभी सुबह भी एक इंसिडेंट हुआ तो उसमें मैंने उनको ये कहा भाई आप लोग जरा एक तरफ हो जाएं, लेकिन वो इस पर थोड़ा सा गुस्से हुए कि भाई ये आपके अंदाज में हमें कह रहे हैं हम लोग 17 ग्रेड के अफसर हैं। लेकिन हमने उनको टाइप कर दिया बहरहाल कि भाई आप 17 ग्रेड के इधर 18, 19, 20, 21 के भी बैठे हैं। मसला ये नहीं है, बात ये है कि मैनेजमेंट की हमें उसको बरकरार रखना है। अब यहाँ पर जाहिर है हमारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, सारा सामान है और गवर्नमेंट का सारा वो टैबलेट्स है, एक एक टैबलेट जो है वो 80-80 हजार का है, इतना सामान पड़ा हुआ है। अब आप एकदम इधर हल्ला बोलेंगे तो हमारे लिए नुकसान है, कोई चीज आगे पीछे हो जाएगी। तो या तो आप बैठिए मैनेजमेंट संभालें। अब ये डील करना और ये कॉन्फिडेंस होना और बातचीत करना, माशाल्लाह वहाँ पे 650 स्टूडेंट एक साथ जिनको ओवरऑल सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। नादरा के लोग अलग बैठे हुए हमारे साथ, उनको भी टैबलेट के वक्त में जो है जब जो भी ट्रबल शूटिंग आती है, जो मसाइल होते हैं बहरहाल वो सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो उस जगह से निकल के आने में मुझे देर हुई। बहरहाल मेरी ये बात बताने का मकसद ये कि देखो आपके अंदर जो है काबिलियत इस बात की होना बहुत जरूरी है कि आप लोगों के मजमे के सामने बात कर सकें। हालांकि बड़ी अजीब सी मैं अब एक दूसरी आखिरी बात आपको बताने लगा हूँ कि हमारे साथ का एक क्लास फेलो लड़का, वो अभी KPK के अंदर MNA लगा हुआ है, मेरा क्लास फेलो है वो लड़का, मेरे साथ पढ़ा है 8 साल, वो आलिम दीन बना है माशाल्लाह, लेकिन हर साल वो फेल होता था। ये मैं एक जबरदस्त बात आपको बता रहा हूँ कि हर साल वो क्या होता था, फेल हो जाता था बेचारा। वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही डल था, पढ़ना लिखना वो चाहता भी नहीं था। उसके वालिद चूंकि आलिम थे, वो चाहते थे इसी लाइन से गुजरे, पीछे लगे रहे, आखिरकार गिरते पड़ते वो किसी न किसी परसेंटेज के साथ पास होकर उसने मुकम्मल दर्स निज़ामी कर लिया, वो आलिम बन गया। लेकिन उसके अंदर फर्स्ट ईयर से पहले साल से ये काबिलियत थी, वापस आ जाना वरना एडमिशन लगी थी, ये काबिलियत थी उसके अंदर कि वो बात बहुत अच्छे अंदाज में करता था। यानी कि आप उसको इधर खड़ा कर दें, इधर 1000 लोग बिठा दें, वो 1000 में से 1000 को कायल कर लेगा अपना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात लोग ऐसे होते हैं, उनकी बात करने के अंदाज में जादू होता है। जब वो ज़बान खोलते हैं लोग अपने मसरूफियात, अपने काम छोड़ के उनकी बात को सुनना शुरू कर देते हैं कि यार ये बात क्या कर रहे हैं। इतना जादू होता है उनके अल्फाजों में और उनके बात करने के अंदाज में। तो ये अल्लाह ताला ने उसको काबिलियत दी थी। अभी नेवी वालों ने एक पोस्ट जो है वो गाड़ी के भाई उनको एक बंदा चाहिए जो कि दर्स निज़ामी किया हुआ हो, आलिम हो, और उनके लिए जो है ना उनको मोटिवेटर टीचर चाहिए, ऑफिसर, मोटिवेटर टीचिंग ऑफिसर, या जो भी किसी को कायल कर ले, मोटिवेट कर ले लोगों को। अब नेवी के बेस में आपको पता है एक मजमा होता है, एक हुजूम होता है, हर एक बंदे का उसके काम ये था उस बेस में कि वो हर नेवी के जो भी एम्प्लॉइज है, चाहे वो अफसर है या निचली दर्जे का सुपरिटेंडेंट है या एक नंबर BPS का क्लर्क भी है, तो उन सबको उसने कायल करना है, किस तरह इस्लाम की तरफ मोटिवेट करना है। अब वो उन्होंने उसके लिए शर्त क्या रखी कि जी हमें जो है फर्स्ट डिवीजन पास जो है ना दर्स निज़ामी चाहिए आलिम दीन, जिसने हमारी लाइन में उसको मुमताज आला कहा जाता है, यानी कि 95% से अबव जिसकी परसेंटेज हो वो मुमताज आला कहलाता है, टॉप जिसको आप कहते हैं ना अपनी लाइन में। अब वो पोस्ट आई, उसके लिए बाकायदा टेस्ट लिए गए, इंटरव्यूज कंडक्ट हुए, सिलेक्शन हो गई। एक साहब जो है वो सेलेक्ट हो गए जो बहुत जिन्होंने टॉप हाई-फाई थे, और हमारे जो इम्तिहानात होते हैं मुल्तान बोर्ड के थ्रू, उसमें तकरीबन हर साल उनकी बहुत अच्छी पोजीशन आती थी, वो मुमताज आला टॉप करने वाले, उनको लगा दिया गया उस पोस्ट पे। उनका जब बिल्कुल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट उनका वो शुरू हुआ काम, तो वो बोलना ही नहीं आता था उनको, क्योंकि हमारी लाइन में भी और अक्सर आपकी लाइन में भी, अंग्रेजी तारीख में भी ऐसे ही होता है कि जो भी स्टूडेंट बहुत जबरदस्त पढ़ने वाला होता है ना, जो टॉप करते हैं, वो अक्सर बोलने वाले नहीं होते। वो इधर आते बच्चे के सामने उनकी सीटी गुम हो जाती है, वो बात ही नहीं कर सकते, वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छा किताब को जानते होते हैं, लेकिन बोलना एक अलग कमाल है।
आप जाहिल से जाहिल तरीन आपके सियासतदान देख ले माशाल्लाह कैसी बात करते हैं, ये माइक उठा के वहां फेंक देंगे, ये वहां फेंक देंगे, लाते मार देंगे, अजीब। यानी कि आप परेशान हो जाते हैं देखने के लिए कि यार इस कार्टून को तो देखना ही चाहिए, आप किसी भी नियत से देखें, लेकिन आप देखने में मजबूर हो जाते हैं, सुनने में मजबूर हो जाते हैं। एक तमाशा करने वाला रोड में आपने बहुत कम इधर आते थे, बहुत आते थे, बीच जाते थे, उसके साथ लड़ने लोग ऐसे मौज में लग जाते थे, इतना पैसा कमाते थे जिसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन बोलने में वो अच्छे से अच्छा पोजीशन लाने वाला भी क्या है, फेल है। अब वो परेशान हो गए कि जिस मकसद के लिए, जिस पोस्ट के लिए हमने खास रखा था, स्पेसिफिक थी, वो काम ही ये बेचारा नहीं कर सकता, इसका मतलब हमसे कहीं गलती हुई है। तब उन्होंने उलमा से राब्ता किया तो उलमा ने उनको समझाया, भाई आपने ये बेवकूफी करी है, इसके लिए पढ़ा लिखा बंदा नहीं चाहिए, जो फेल होता हो ना थर्ड डिवीजन के साथ फेल होने वाला, वो तालिब इल्म आपको बहुत अच्छा बोलने वाला मिलेगा, वो आलिम दीन होगा, बहुत अच्छा बोलता होगा। उन्होंने कहा चलो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो सेकंड डिवीजन का है, तब भी सिलेक्शन हुई, वो बंदा काबिल नहीं था। फिर वो थर्ड डिवीजन पे आए, तब जाके उनको वो मकसद का आलिम दीन मिला, जो बोलने में माहिर तरीन भी था। और ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल है, बहुत कम मिसालें हैं कि पढ़ने में भी अच्छा हो और बोलने में भी जबरदस्त हो। ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत कम हुआ करती हैं। हमारे साथ एक अपना तालिब इल्म हमारा दोस्त था, हमारे साथ उसने पढ़ा। बड़ी हैरत की बात है, आखिरी बात कर देता हूं कि वो फेल होता था, लेकिन आप उसके पास बैठ के समझेंगे ना कोई भी चीज, वो आपको उस्ताद से भी बहुत अच्छी समझा देगा। हालांकि उस्ताद के साथ बैठ के तलबा को बहुत सी चीजें नहीं समझ आती थी, उसके साथ बैठते थे, वो 1 घंटे की बात जो है 5 मिनट के अंदर इतने आराम से समझा के उठता था, अगला बोलता था यार हर बात समझ आ गई। उसके पास ये कमाल था, लेकिन बेचारा खुद पेपर में लिखते हुए उसको कुछ नहीं समझ आती थी, वो पता नहीं क्या लिखता था, फेल हो जाता था। सर उसकी घर वालों को और उससे पढ़ने वाले सारे तलबा पास होते थे अच्छे नंबर और वो खुद फेल होता था। तो ये हैरत की बात है, दुनिया के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी मिसालें इस तरीके से। इसीलिए आपको भले अंग्रेजी ना आती हो, आपको उर्दू ना आती हो, कुछ भी नहीं होता हो, तब भी आप सारे काम कर सकते हैं। क्या अंधे लोग दुनिया में पहले दिन मर जाते हैं, आखिर तक जिंदगी गुजारते हैं। गूंगे लोग आखिर तक जिंदगी गुजारते हैं। हमारे तबलीग के अंदर एक वाक़या हुआ, जहाज में बैठे हुए थे, तबलीग की जमात वो जा रही थी किसी बाहर मुल्क, और वहां जो है उन्होंने जमात मेहनत करनी थी, तबलीग का काम करना था, पठान थे सारे, और किसी अंग्रेजिस्तान मुल्क में जा रहे थे। और जहाज में बैठे हुए उधर अंग्रेज नौजवान साथ बैठा हुआ था, उस बूढ़े आदमी के, वो उसको देख के रोने लग गया जहाज के अंदर ही। और वो जाहिर है अंग्रेज नौजवान, वो उसको देखकर तो परेशान होगा ना, वो कहेगा यार तुम मुझे जब देख रहे हो रोई जा रहे हो अंग्रेजी में बार बार। अब उसको समझ ही नहीं आ रही है क्यों क्या बोल रहे हैं। अब वो एक परेशानी शुरू हो गई ना कि ये पठान साहब मुझे देख रहे रो रहे, और वो अंग्रेज से पूछ रहा भाई व्हाई यू आर क्राइंग टू सी आफ्टर सीइंग मी, जो भी मुझे देखने और तो बार बार रोए जा रहे हो, ये क्या मसला है। अब वो एक तनाजा शुरू हो गया ना, वो रो रहा है पठान, ये उसको बार बार पूछे जा रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो बीच में एक बंदा उठ के आ गया ट्रांसलेटर, उसने बोला भाई क्या मसला है, पठान से पूछा उसकी पठानी में। उसने बोला मैं इसको देखकर इसलिए रो रहा हूँ कि इतना खूबसूरत नौजवान है और ये आग में जलेगा कल को। उसके दिल में तो एहसास था ना, उसको बोलना नहीं आता था, इसलिए उसके आंसू निकलना शुरू हो गए। अब उसने ट्रांसलेट करके बताया भाई ये पठान भाई हमारे ये बात कह रहे हैं। वो एकदम अरे भाई वो इंस्पायर हो गया, अंग्रेज हैरान हो गया कि ये क्या बात कर रहा है यार, इसको मेरी इतनी फिक्र क्या पड़ी है। इधर तो लोग हमारे मुल्क के अंदर पैसे के लिए एक दूसरे को चाकू मार के छीन के भाग जाते हैं, ये मेरी मरने की बात की फिक्र करके रो रहा है पागल। अब वो पूछना उसने शुरू करा भाई ये अच्छा चलो रो रहा है, इसको बड़ा एहसास है मेरा, तो इसको बोलो अपनी बात मुझे बताए, वो क्या बात है ऐसी कि मैं बच जाऊं। उसने वहीं से दावत शुरू करी, इसने ट्रांसलेशन शुरू करी 2-4 मिनट में जहाज के अंदर उस अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया। अच्छा उसको देखा देखी 5-7 और अंग्रेज जो बैठे थे, उन्होंने भी फिर पूछा भाई ये क्या डिस्कशन, अजीब हैरत में पड़ गए सारे। जब उनको भी सारी बात बताई गई, उन्होंने भी सबने कलमा पढ़ लिया कि भाई चलो अगर इस्लाम ये है
और इस वजह से इनको हमारी इतनी फिक्र है कि हम आग में जाकर जलेंगे। तो हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, अब हमें इस्लाम सिखाओ। तो देखो उसको अंग्रेजी नहीं आती थी पढ़ाने को, लेकिन उसके जज्बात जो थे वो खालिस थे, वो पॉजिटिव थे। अल्लाह ताला ने देखो कैसे रास्ता बनाया। तो इसके लिए ज़बान में आना शर्त नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप करना चाहे तो हो जाएगा, बड़ा आसान काम है, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, तब खुल के बात करें। ग्रुप नंबर 3 कौन है? कौन है भाई ग्रुप नंबर 3 के? आ जाओ जल्दी से। कौन है? हम लोग 7 हैं। ग्रुप 3 कौन है? लड़के? नो सर, वी आर स्टडीज पर ग्रुप नंबर 7। मेरे ग्रुप पर जो पाकिस्तानी स्टडीज का ग्रुप है, चलो भगवान वही लेके आए हैं। किस नाम से की थी में? देखो सही है। ऊपर तो नहीं था डिफरेंस अरे देखो फिर इधर हो गया इसमें स्पैम में। दोबारा कबीरा कमल आने मोहम्मद ग्रुप और कौन सा है? ग्रुप नंबर रह गया। जल्दी भेज दो, फिर वीडियो का नंबर बुलाते हैं। हम सारे सीक्वेंस से हो जाएगा। मसला होगा। किसका चलता है? लड़कों का ये हाल है, लड़की आगे बढ़ी है। सर हमने क्यों उठा नहीं हेलो, ग्रुप पता नहीं है इसको ग्रुप बता। इन्होंने फिर भी वही बात आपने भी बताया। लेकिन सर हमारे पास सब देखने वाला सर आप तैयारी नहीं करी है। वो तो मुझे पता चल जाएगा तो नंबर नहीं तैयारी करनी चाहिए थी पहले से। क्या हुआ भेजी? भाई टाइम का ग्रुप 5 क्या चले भाई
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हमें टॉपिक दिया गया था आज वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन 1973। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें एक सेट ऑफ बुक होती है जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारी इंस्टीट्यूशन अपने को बालातर समझेंगी एक रूल ऑफ लॉ से, और हमें रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर मैं बात करूं हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन की 1973 की, तो इसमें दो चीजें थी, पार्लियामेंट्री लॉ होता है और एक देखते हैं जब तक टाइम है। प्रेसिडेंशियल लॉ। प्रेसिडेंशियल लॉ में हम जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट होते हैं वो होल्डिंग करते हैं उनको। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें पीएम, अगर मैं पार्लियामेंट्री की बात करूं तो पार्लियामेंट्री में पीएम जो होता है वो रूलिंग। चले चले क्या हुआ? हाँ, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिपरेशन का टाइम सर नेशनल असेंबली से सर 25 मेंबर कमेटी बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल हफीज पीरजादा। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड ऑन 10 अप्रैल 1973 और प्रेसिडेंट को जो प्रेजेंट की गई थी 12 अप्रैल 1973 और एनफोर्समेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था 14 अगस्त 1973 में हुआ। और ये सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर जो अभी तक भागे जा रहे हैं। देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। पाकिस्तान के जो पुराने आयन थे उन्हें ये लोग मुस्तकिल का ये तो इस तरह किया गया था और फिर डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसमें ये कि 1970 की आयन में तफसीली आयन है जिसमें 250 आर्टिकल थे, 12 इसके और 7 शेड्यूल थे। तो जबरदस्त इसमें इस तरह की वाशी में नाउजी करारदाद शामिल थी। इसमें कहा गया है कि हाकिमियत अल्लाह ताला की है। फिर नेम ऑफ कंट्री इस्लाम को रियासती मतलब करार दिया गया और उनका नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया। तो ये चौथा बजूंगा क्या करेगा? इनका नंबर नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। सिस्टम जो है कंट्री अंडर सर, इसका मतलब ये कि सर दो हाउस होंगे, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, वो कंट्री को रन करेंगे। और दूसरा फेडरल सिस्टम जो है पाकिस्तान में फेडरेशन होगा और जो सारे प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनॉमस होंगे, इंडिपेंडेंट, और उसको फॉर्म करके गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर दो टाइप की गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेसी के अंदर, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और हेड ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। So the basic reasons that there are the fundamental key features of the constitution that was actually passed. Back at the story, we have been through the dictatorship. हम दो दफा डिक्टेटर का शिकार हुए और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास ये मसाइल आ रहे थे कि प्रेसिडेंट वाज एक्चुअली द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, यानी कि उनकी मर्जी से बार बार प्राइम मिनिस्टर हटाया जा रहा था जो कि उनकी मर्जी से नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ साबडार, फॉर एग्जाम्पल वी सिकंदर मिर्जा इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। उनके दौरे हुकूमत में कम से कम 4 प्राइम मिनिस्टर, 4 से ज्यादा पीएम जो है वो 4 महीने के अंदर तब्दील किए गए, उससे भी ज्यादा। तो इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा हाउस ऑफ जो पावर है उसका तब्दील होना एक स्टेबल हुकूमत के लिए सही नहीं था। और कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी जो हमारे पास खतरे का शिकार हुए वो था डिक्टेटरशिप। हम डिक्टेटरशिप का शिकार हुए जिसमें हम कंक्लूजन दैट द नेशनल असेंबली अप्रूव्ड 1973 Constitution of Pakistan on April 10,
1973, proclaimed it is on August 14, 1973. अप्रूव हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्राफ्ट में आता है और फाइनली बुक की शक्ल में इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में बाद में आता है। यानी कि एक बंदा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फकार अली भुट्टो ने पेश किया, देन उसमें कैबिनेट जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली बैठी, उसने अप्रूव किया कि ठीक है ये हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर वो उसे कहते हैं प्रोक्लेम्ड हुआ अगस्त 14, 1973। Some silent feature of 1973 Constitution of Pakistan are written, federal, parliamentary, bicameral and rigid, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो ये था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। सर ये मौका ही नहीं दे रहा सर। हो गया सर, हो गया सर। अगर किसी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलना भी ना थोड़ा कम बोला है। खैर चलो हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये डर जाते हैं। हाँ क्वेश्चन करो, अभी करते हैं सर। हाँ करें, अभी क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन देना आपने, वरना आपके नंबर आपको तो पहले ही कहने सवाल करो, आप कह रही हो कोई सवाल ही नहीं है। किस नाम से ग्रुप 5 देखे? ग्रुप 5 हाँ ग्रुप 5 ग्रुप 4 आ रहा है 5 ये बिलाल बुखारी सर ये तो आपकी मिक्स है। सर्च करें मैं सर्च करूँ। स्पेन में देखो यहाँ, अरे तो जल्दी हो जल्दी इंट्रो दो। हमारा टॉपिक मैं सब अच्छे से लगाऊं। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान देखा कैसा होता है, डिशुम डिशुम। कहाँ कुछ आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगी स्लाइड सारी करूंगी। अच्छा We are going to talk about some important cities of Pakistan. वैसे तो सारी शहर बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जी इधर आ जाओ, जब तुम आओगे तुम हट जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वी हैव कराची। भाई आगे बढ़ो, टेंशन चल रही है। रिमशा The city of light. अरे रोशन हो गया। बोलो। चले चले कंटिन्यू करो। My name is Rimsha Kanwal. ये तो okay. So Karachi is a very populous and largest city of Pakistan, and the ठीक है कौन है भाई? रिमशा पर देख के कर। एंड कराची जो है वो 12th लार्जेस्ट सिटी भी है इन द वर्ल्ड। ओके नहीं सर इन लोगों को हटा दें। नहीं आप इशारे बैठो ना, तो बोल रहे हो आप फॉर्मल एटीट्यूड रखिए। फॉर्मल चले चले कंटिन्यू करें। कराची का जो टेम्परेचर है या जो उसका जो क्लाइमेट रहता है वो लॉन्ग समर्स रहते हैं, और जो विंटर्स होते हैं वो मोस्टली शॉर्ट होते हैं, और स्प्रिंग ऑटम भी शॉर्ट में रहता है। अगर हम कराची की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कराची का पहले नाम था कोलाची जो गोट, वो एक्चुअली एक फार्मर का गांव था ये। एंड देन कराची को एज अ फिशरमैन विलेज यूज़ किया जाता था, जो कि बाद में इसकी रिहाइश हुई एंड देन आबाद हुआ ये। तो हम बैक देन 90s की अगर बात करें
तो 1914 के अंदर कराची जो है ग्रेन एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आया। एंड देन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बात ही नहीं करेगा कोई, खामोश हो जाए बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इसके अंदर क्या में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाई गई। एंड देन 1924 के अंदर एरोडोम करके भी कुछ बनाया गया था। 1936 के अंदर कराची को एज अ पोर्ट यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। एंड देन 18th सेंचुरी के अंदर वो जो कराची जो गोट का जो मैंने जिक्र किया वो 18th सेंचुरी के अंदर इसको नाम दिया गया था। अब हम इसकी बात करते हैं कि कराची के अंदर, कराची जो है सबसे ज़्यादा मैंने बता ही दिया कि पॉपुलस जैसे बहुत सारी डाइवर्स डिफरेंट नेशंस इधर रहती हैं, वो पठान हो हर तरह का, तो इसको एक सेक्युलर सिटी भी हम कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है डिवीजन्स इस तरह करके कि 18 डिवीजन्स हैं जो सब डिवीजन्स में आते हैं, जैसे कोरंगी, लांडी, मलीर और नॉर्थ का, और इस तरह से। फिर तुम ही लोग एक्सप्लेन कर दो, बातें नहीं करो। रेवेन्यू की बात करें तो कराची ने 2021 के अंदर $9 बिलियन का रेवेन्यू दिया था, जो कि 25% है और ऑलमोस्ट पूरे कंट्री का हाफ। और कराची जो है फर्स्ट फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, रावलपिंडी तो लगा था ना, कहाँ से आ गए? अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारी आखान यूनिवर्सिटी, IBA एंड देन NED, डाउ, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटीज़, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, इकरा नहीं आती। हमारा तो टॉपिक नहीं है ना, फिर खामोश हो जाओ। इसका टॉपिक आप आखिर में सवाल कर देना। चले आगे चले। शॉपिंग जोन्स के अंदर आता है, अभी तो खैर लकी वन और ये सब बन गया, तो ये बड़े शॉपिंग मॉल्स में आता है। और कराची के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर ईद पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने वाले कराची के ही लोग पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हब बहुत बड़ा है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो यहाँ का लाइक बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आता है। एंड देन अभी ग्रीन लाइन और रेड लाइन का भी स्टार्टअप हुआ है। लाइफस्टाइल की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो सबका अपना अपना डाइवर्स एक लाइफस्टाइल है जो कराची के लोग इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर नेशनल स्टेडियम है जो कि क्रिकेट के हवाले से आजकल PSL वगैरह स्टार्ट होगा तो वो फिल रहता है। बीचेस, यहाँ कराची के पास बहुत सारे बीचेस का एक यूनिक गिफ्ट दिया गया है और अरेबियन सी भी कराची से थोड़ा सा करीब ही है। म्यूजियम्स में यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं, मज़ार-ए-कायद एंड मुहत्तब प्लेसेस। हॉस्पिटल्स, यहाँ पे बहुत अच्छे, कराची में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और थोड़े पैसे भी लग जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क्स भी हैं, PIE और ये सब। लेकिन अगर हम कराची के प्रॉब्लम्स की बात करें, कराची के जैसे कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वाटर शॉर्टेज का इशू है, गैस का इशू है और बाकी वो फ्यूल वगैरह के ये सारे इश्यूज भी हैं। ओके, दैट्स इट फॉर हैदराबादी कौन है? जल्दी से। Now we are gonna talk about Hyderabad. Hyderabad जो है 6th largest city of Pakistan and 2nd largest city of Sindh. और हिस्ट्री में हैदराबाद जो एक स्मॉल फिशिंग विलेज था जो कि इंडस रिवर के नाम से जाना जाता था, इंडस रिवर पे था और न्यूरॉन कोर्ट के नाम से पहचाना जाता था। उसके बाद हैदराबाद जो है लेटर वाज फाउंडेड इन 1768 बाय कुल्हूरा रूलर मियां गुलाम शाह कलहूरू। लेटर हैदराबाद जो है एक हैदराबाद इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर। There are many historical places to visit in Hyderabad like Sindh Museum, Mukhi House, Miranda Duba and Badshai Bengal etc. उसके अलावा हैदराबाद इन स्पोर्ट्स में, हैदराबाद में जो वैसे तो सारे ही गेम्स जो है काफ़ी खेले जाते हैं, बट उनका जो है जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनका फेवरेट जो है क्रिकेट है, फुटबॉल है और एक उनका ट्रेडिशनल गेम है विच इज़ मलखरा जो कि रेसलिंग की तरह से होता है।
और हैदराबाद में इतना कुछ खास फेमस तो नहीं है। उनके जो अगर फूड के हिसाब से देखा जाए तो उनके बॉम्बे बेकरी काफ़ी फेमस है। वहाँ पर कोई केक है बहुत फेमस है जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस माना जाता है। और वहाँ की पल्ला फिश जो है काफ़ी फेमस है पूरे पाकिस्तान में। और लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड इन हैदराबाद आर उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, पंजाबी, बलोची एंड पश्तो, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के ही लोग रहते हैं। और बस इतना सही है। ठीक है। Assalamu alaikum. Sir, I'm not Lahori, but my topic is Lahore. So, Lahore is the second most populous city in Pakistan after Karachi, and 26th most populous city in the world with a population of over 13 million. It is the capital of province of Punjab, where it is large city. Lahore is the major center of Qawwali music, and this city also hosts much of Pakistan tourist industry. This city also, with major attraction including the Wall City, the famous Badshahi and Wazir Khan Mosque, as well as several Sikh and Sufi shires. Lahore culture is unique. Sometimes it's referred as the cultural capital and the heart of Pakistan. This city was the seat of Mughal Empire and the Sikh empires, as well as the capital of Punjab in Muhammad Ghaznavi's 11th century's empire and in the British Empire. Thank you. Over to Varisha. Assalamu alaikum. My name is Varisha and my topic is Islamabad and Rawalpindi. Rawalpindi is a city in the Punjab province of Pakistan. It is one of the largest city. It is the fourth largest city in Pakistan after Karachi, Lahore and Faisalabad, and third largest in Punjab after Lahore and Faisalabad. Rawalpindi is next to Pakistan's capital, and the two are jointly known as the Twin Cities because of the social and economical links between them. Rawalpindi is the military headquarters of Pakistan Armed Forces. Islamabad, the capital city of Pakistan, is one of the beautiful cities in the South Asian region. Or Islamabad has a reputation of being a thriving business-minded capital that lies in the Pakistan's growing urbanized scenes. Or the White Marble Faisal Mosque, which is an important landmark of Pakistan, is one of the largest mosques in the world. Peshawar is among the sixth most populous city of Pakistan. Capital है खैबर पख्तूनख्वा का. इसकी population 2.3 million above है. Peshawar has a historical background और पेशावर में guns और pistols प्रोड्यूस होती हैं, तो वो फेमस उस चीज़ के लिए है. और पेशावर जो है एंटीक्स और हैंडीक्राफ्ट्स के और म्यूजियम्स के लिए फेमस है. पेशावर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर का शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ. थैंक यू. कोयटा जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल है कराची का और पाकिस्तान का. प्रोविंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का और ये 536 माइल्स अवे है कराची से और ये साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है और इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान में. इसकी पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलियन है और ये आपका 10th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है. कोयटा जो है वो 5,500 फीट अबव सी लेवल पे सिचुएटेड है और यहाँ का वेदर मोस्टली ड्राई और चिली होता है, जिसको हम बोलते हैं कि कोयटा की हवाएं चलती हैं तो कराची पे सर्दियाँ बढ़ती हैं. फिर इसके अलावा यहाँ इसमें दो पिकनिक पॉइंट्स हैं. एक है हन्ना लेक और उरक वैली जो कि पिकनिक रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए लोग यहाँ पे विजिट करते हैं. और एक है ज़ियारत हाउस जिसकी पिक्चर लगाई भी थी. ज़ियारत हाउस में ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको एक्सप्लोर करने जाते हैं. और कोयटा के जो फेमस फूड्स हैं वो है सज्जी या फिर दमपुख्त. इसके अलावा कोयटा में फेमस मिलिट्री कंटोनमेंट भी है बलूचिस्तान की साइड. थैंक यू.
क्या सवाल है? सवाल एक तो पहले क्वेश्चन आंसर देते हैं। पिशावर में सर तकसीम में खाने होता है, पिशावर में खाने मिलता है। सर फूड नहीं बताया। नहीं सर, पिशावर में बहुत ज्यादा खाया जाता है। चकली कबाब। नहीं आपने देखिए वो हाँ ये पिशावर में है, इसलिए तुम्हारे अंदर से आ रहा होगा। पहले जो अच्छा बोलो क्वेश्चन करो भाई। नहीं सवाल तो सही है ना। पूछो भाई, सवाल से पूछो। आप ये कह रहे कि असला वाला बन के उनको प्रोवाइड करते इसलिए वैसे कंडीशन के अपने आप में शुमार करते खट्टी सारा बनता है तो बनाते हैं। मेरे को सवाल है। अरे ये तो इनफॉर्मल हो रहा है सर, इनफॉर्मल केस होना चाहिए। सवाल कर लो भाई, लड़ना बात है। कोयटा में ज़ियारत है, ज़ियारत हाउस है। ज़ियारत हाउस जी, ज़ियारत हाउस है जहाँ वो रेसिडेंसी है कायद आज़म की, जो कि जहाँ पे लोग जहाँ तो आपको पता है ना ज़ियारत हाउस में होता क्या है? ज़ियारत हाउस सिर्फ सर किसी बात कोयटा में ज़ियारत है रेसिडेंसी है। हाँ रेजिडेंसी का बताया ना देखिए हाँ जो आपने मशहूर चीजें बताई दूसरे शहरों की कोयटा ठंडी हवा होता है नहीं बता। चलो बस सही है। भाई सबसे बड़ी बात यह है, बात सुन लो भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने नाम ही नहीं बताए तो ये आगे क्या बताए। एक बेचारी ने आके पहले नाम बताया, अक्षर ने नाम नहीं बताया। अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया, वो शहर का इंट्रोडक्शन क्या कराए। चलो ग्रुप नंबर 6 कौन है? चलो ग्रुप नंबर 6 पे नेक्स्ट क्लास से हम ले लेते हैं। अच्छा जी, अलीशबा अमजद अलीशा, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा समी। कौन है फातिमा समी? लग गई। गुल नबी, खामोश हो जाओ अभी। हफ्सा इसरार, हानी आमिर। हफ्सा इसरार कौन है? हसीना बीबी, हुमैरा शब्बीर, हुमैरा, इमाला थानवी, इकरा, खुदैजा, माहीन वसीम, मोनुल वरीशा, नेमत, नज़ाफत तकी, रिदा बतूल, रिदा जुल्फ़िकार, रिमशा कंवल। रिदा जुल्फ़िकार है और रिदा बतूल, रिमशा कंवल, सफीना कंवल, सानिया अलवी, सेहर, शहीर आलम। शहीर आलम नहीं आया। शहीर आलम कौन है?
अरे नहीं सर, मेरा नाम याद है। बेचारा परेशान है ना, मुझसे क्यों पूछ रहे अरे हैं? नहीं सर, आपको मेरा नाम तो पता ही कैसे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, शहीरा आलम, शामिर शाहिद। इसमें मुगालता हो गया था, ऊपर नीचे ही है ना। सैयदा ईशा अली, सईदा खुशना, जरमीन कैफी, तैयबा, उम्मे रुबाब, उम्मे रुबाब नहीं आई, उम्मे रुबाब, जैन इमरान, एप्लीकेशन है सर, आप उम्मे रुबाब की। हाँ उन्होंने एप्लीकेशन दी है और छोटी से भी बात की है आपके लिए एप्लीकेशन दी है सर। वो थोड़ा पकड़ के चलिए, पिछले क्लास में अपने अटेंडेंस में वो तो 6 हुई है ना, अभी की मिला के 8 थी, अभी मैंने लगा दी बस। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो प्रेजेंटेशन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।